In the last lecture, we were discussing the sums of demand, supply, and elasticity, right? And we have discussed three sums from this file: demand, supply, and elasticity, right? I will share all the files of economics today again after the lecture, and total there are this 0, 1 to 10 number. 10 files are there, and numericals are from file number 6 and 7. And in file number 8, there are handwritten solutions. File number 9 is price floor and price ceiling, which I discussed in the previous lecture. And this file number 10 I have added today, right? This is a comprehensive file in which you have all the numericals of SEM 1. SEM 1 के लिए जो भी important numericals है ना, till mid SEM, end SEM of all the chapters. Okay, the common, but I have the solution separate. I will try to compile the solution of all these sums in one file, but that will take time. So this is all the sums till end SEM 1. So only questions are in this file number 10. Solutions are not there in one file, right? So that question file I will share if you all want. But solution का एक फाइल में सब कुछ वो मिड सेम के बाद में बना के भेजूंगा, ठीक है? बट जो भी अभी मिड सेम में है उसके क्वेश्चंस तो हम लोग वर्ड फाइल इसमें डिस्कस कर ही रहे हैं. द क्वेश्चंस आर सेम. And one of the student had shared this file also today. So in this also the question are same only. ये करंट ईयर का फाइल है और इसमें भी कोई क्वेश्चन है जो मेरे वर्ड फाइल में है, जो हम ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये इलास्टिसिटी वाला और दिस ऑल्सो. So the questions are same only. So I will first complete this, and then if time is left, then I will discuss some important questions from the past papers also of demand, supply, and elasticity. In CEC, you all have only demand, supply, and elasticity only, ना? इसके आगे का भी नहीं है ना कुछ. CEC में किसी को elasticity के आगे भी सिखाया है या सिलेबस में है? So we have discussed first three questions. Question number 1, 2, and 3 in the previous lecture. So today I will start with question number 4. Here it is given, you study survey data and observe that if Coca-Cola cost ₹8 per case, then 5 cases of Pepsi are demanded. अगर कोका-कोला का भाव 8 रुपया है एक केस का, एक कैन का, you can say, then Pepsi के 5 कैन 5 केसेस सेल होते हैं, 5 केसेस का डिमांड होता है. बट इफ कोका-कोला कॉस्ट ₹16, बट अगर कोका-कोला का कॉस्ट 8 रुपए से 16 रुपया हो जाता है, तो जो पेप्सी का डिमांड है वो 5 से 11 हो जाएगा. Calculate the cross price elasticity of demand for cases of Pepsi and how are these two goods related. तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हमें कैलकुलेट करने बोला. तो कोई भी इलास्टिसिटी हमें निकालना है तो फॉर्मूला न्यूमरेटर तो सेम होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट. हियर वो प्रोडक्ट पेप्सी है और नीचे अगर प्राइस पूछा है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्रॉस पूछा है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, और इनकम पूछा है तो नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन इनकम, और प्रमोशनल पूछा है तो नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल एक्सपेंस. दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. So how to solve this? We have to find the cross elasticity, and we also have to comment what is the relation between Pepsi and Coca-Cola, whether they are substitute, whether they are complementary or they are not related, right? So that also I have already discussed
and explained from this file number 03, that is 12th standard textbook, है ना. इसमें मैंने बताया था कि सब इम्पोर्टेंट जो भी इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है इसमें छोटे छोटे टेबल है और सिंपल लैंग्वेज में है जो तुम लोगों को गो थ्रू करना है और याद रखना है. ये सब इलास्टिसिटी जो भी है यहाँ पे, ऑल दिस यू हैव टू रिमेम्बर कि अगर इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो क्या होता है, नेगेटिव है तो क्या होता है, जीरो है तो क्या होता है, राइट. ऐसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी का, अगर वो पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री. ऑल दिस यू हैव टू रिमेम्बर, राइट. तो हियर दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. ये तो पूरा सॉल्व किया हुआ ही है मैंने, हैंड रिटन. सो व्हाट इज गिवन, फर्स्ट यू शुड राइट दैट price of Coca-Cola is given. If you see the question, price of Coca-Cola is given 8 and 16 and quantity of Pepsi is given 5 and 11. The price of Coca-Cola, so that I have written here PC, price of Coca-Cola 1, and this is the first price and this is the second price. And quantity of Pepsi, so the quantity first is 5 and Q2 is 11, right? Then first of all, to find the elasticity, you always have to find the change. The price या income में क्या change हुआ, quantity में क्या change हुआ. Quantity का change भी ढूंढना है, वो तो हमेशा ही ढूंढेंगे. तो change यानी this 16 minus 8, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है. Except in price elasticity, income, promotional or cross में you have to use the sign also. And हमेशा new price minus old price, not 8 minus 16 you will not take, always the new price minus old price. So 16 minus 8, that is the change in price of Coca-Cola. Change in quantity, 11 minus 5, 6. As I said, there are two methods of finding all the elasticity, the normal one and the arc elasticity method. But this solution was prepared in 2020, and that year in IBS all the faculties told the students to solve the sum by arc elasticity method only if question is silent. But in the previous years, some faculty informed that you can solve with any method. Some faculty says that you have to solve with normal method if nothing is mentioned, and if arc elasticity is mentioned, then you have to solve with arc elasticity method. तो इस साल तुम लोगों को आर्क इलास्टिसिटी से सॉल्व करना है. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी लिखा ही नहीं है, खाली क्रॉस इलास्टिसिटी लिखा है, कौन सा मेथड वो नहीं लिखा है, तो ये तुम लोग अपने अपने डिवीजन में अपने अपने फैकल्टी से कंफर्म करोगे जब भी ये टॉपिक कवर होता है और हो चुका है तो नेक्स्ट लेक्चर में, कि आर्क इलास्टिसिटी मेथड फॉलो करना है कि नॉर्मल वन if the question is silent or anyone will be, कोई भी चले, anyone will do. ठीक है, तो अपने अपने फैकल्टी से पूछना है. दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है आज मैं वापस बता दूंगा, प्रीवियस लेक्चर में तो बताया ही था. ये तो निकालना ही है, गिवन है और चेंज निकाला. दिस सम इज सॉल्व्ड हियर बाय आर्क इलास्टिसिटी मेथड. ये फॉर्मूला आर्क इलास्टिसिटी का है, और कोई भी इलास्टिसिटी निकालो तुम, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्रमोशनल इलास्टिसिटी, दिस न्यूमरेटर विल बी सेम ओनली. ये हमेशा सेम ही होता है. चेंज इन क्वांटिटी अपॉन एवरेज ऑफ बोथ द क्वांटिटी, that is Q1 plus Q2 upon 2, और डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर. अगर क्रॉस इलास्टिसिटी है तो चेंज इन प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी. अदर कमोडिटी यहाँ पे कोको कोला है, and average of that prices that are given. And in normal method, what you will write is change in Q upon Q1 divided by change in PC upon PC1. बस ये प्लस PC2 upon 2 वो नहीं आएगा. नॉर्मल में हम खाली फर्स्ट प्राइस जो होता है या फर्स्ट क्वांटिटी होता है उससे ही खाली डिवाइड करेंगे. यू विल नॉट टेक द एवरेज. तो इधर ये नहीं आएगा.
और इधर ये नहीं आएगा अगर नॉर्मल मेथड है तो दोनों मेथड से तुम्हें आना चाहिए। और जो भी फैकल्टी तुम्हारे डिवीजन में है, जो भी उन्होंने बोला है, वो मेथड डिवीजन वाइज तुम्हें फॉलो करना है। मोस्टली दे विल से द सेम एनी वन मेथड इन ऑल ऑफ द डिवीजन। तो कोई भी कंफर्म करके नेक्स्ट लेक्चर में मुझे भी बता देना कि क्या बोला है, ठीक है ना? तो आई कैन ऑल्सो टीच अकॉर्डिंगली फॉर द मिड सेम। सो ये तो क्लियर है ना कि फॉर्मूला क्या है? बस देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। चेंज इन Q is 6 and then 11 plus 5 upon 2 divided by 8, 16 plus 8 upon 2. Your answer will be 1.125. और ये नॉर्मल मेथड से निकाल के बताओ कितना आ रहा है हमारा। अगर ये नॉर्मल मेथड से निकालोगे तुम लोग, व्हाट विल बी द आंसर? नॉर्मल मेथड में क्या करना है, ये नहीं लेना है, खाली चेंज इन Q अपॉन Q1 यानी 6 अपॉन 11 डिवाइड बाय 8 अपॉन 16, बस इतना सॉल्व करना है। 6 अपॉन 11 डिवाइड बाय 8 अपॉन 16। समझ में आ रहा है? और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अगर होता है इनकम इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे मैंने बताया, सॉरी, क्रॉस इलास्टिसिटी is positive, then those are substitute goods. If it is negative, those are complementary goods. ये कमेंट भी करना है, because in the question they will ask you, how are these goods related? These goods are substitute goods. Greater than 1 or positive, Coca-Cola and Pepsi are substitute goods. इसमें किसी को डाउट है कि समझ में आया सबको? Sir, this is with sum, sir. क्या नहीं समझा? No, this is demand per sum or supply or what is it? यहाँ डिमांड सप्लाई तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग इलास्टिसिटी। So elasticity of demand. हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है। सप्लाई का इलास्टिसिटी तो कोई सम तुम लोगों को है ही नहीं। इलास्टिसिटी ऑफ सम, सप्लाई इज नॉट देयर अभी ना, वो तो एक अलग आएगा, बट वो फाइंड करने के लिए नहीं है जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे सिलेबस में, राइट? वी आर फाइंडिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओनली। उसमें ही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आता है ऊपर, right? And this is the formula which we have discussed in the previous lecture. I am continuing with those formula only. जहाँ मैंने previous lecture में छोड़ा था वहां से ही शुरू कर रहा हूँ। Previous lecture सुना था क्या तुमने? You know the formulas of elasticity or no? So this is the first economic factors on listening to yours. So that's why. इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग डायरेक्ट मेरा थर्ड फोर्थ लेक्चर, आज तो फोर्थ लेक्चर है इकोनॉमिक, तो तुम लोगों का मिस होता है, तो बिफोर ज्वाइनिंग एटलीस्ट यू शुड वॉच द प्रीवियस लेक्चर एटलीस्ट। और जैसे जैसे टाइम मिलता है तुम लोग वो सारे लेक्चर्स फॉरवर्ड कर करके देखोगे, तो जो जो इम्पोर्टेंट बोला है वो नोट करोगे, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसमें फर्स्ट और सेकंड अगर किसी ने नहीं सुना है तो भी चलेगा, बट थर्ड लेक्चर अगर नहीं सुना है तो आज का लेक्चर में थोड़ा बहुत नहीं भी समझ सकता है, बिकॉज वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस थर्ड लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये तो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का, अगेन का आई कैन नॉट रिपीट ऑफ द थर्ड लेक्चर, ठीक है? वो तुम लोग देखना यूट्यूब पे पहले जिसका मिस हुआ है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द फॉर्मूला व्हाट वाज गिवन इन द क्वेश्चन एंड ये आ गया आंसर, राइट? That was the formula of elasticity. Yes, Bodhimanta. सर एक तो है आर्क इलास्टिसिटी मेथड और एक पॉइंट मेथड है, राइट? दूसरा वाला जो आपने कहा। हाँ। तो सर आइडियल मेथड कौन सा, मतलब अगर मेंशन नहीं है आइडियली कौन सा मेथड हमें मैंने करना चाहिए? ऑलरेडी बोला ना बोधिमंता कि वो तुम्हें अपने डिवीजन के फैकल्टी से पूछना है। सर एक्चुअली उन्होंने दोनों मेथड सिखाया है हम लोग को। दोनों मेथड सिखाया है ना, तो ये हाँ। आज द फैकल्टी ना कि वो तो क्योंकि मार्क्स वो लोग देंगे,
आइडियल मेथड मैं तो नॉर्मल वाला ही फॉलो करता हूँ, आर्क फॉलो नहीं करता हूँ। अगर Okay. मुझे सम सॉल्व करना है और मुझे कुछ नहीं नॉलेज है, कुछ नहीं लिखा है, Hmm. तो आई विल नॉट फॉलो आर्क। माय रूल इज कि अगर आर्क मेंशन है तो ही आर्क फॉलो करो, नहीं तो नॉर्मल करो। बट मेरा रूल नहीं चलेगा ना आईबीएस में, मार्क्स तो तुम्हें आईबीएस के फैकल्टी देंगे, राइट? तो इसीलिए I मैंने got it. बोला कि यू कंफर्म फ्रॉम योर फैकल्टी, यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर फैकल्टी, कि जो पेपर चेक करेंगे, जो मार्क्स देंगे, कि अगर कुछ नहीं मेंशन है तो मैम हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है या कोई भी चलेगा। तो हर साल अलग अलग बोलते हैं। 2020 में आईबीएस में आर्क मेथड बोला था, लास्ट ईयर नॉर्मल मेथड बोला था, 22 में उन्होंने बोला था कोई भी मेथड चलेगा, राइट? So you should know both the method and which method is to be applied, that you will have to ask your faculty through CR or directly. Directly भी पूछ सकते हो, all faculties are cooperative, ठीक है ना? तुम लोग पूछोगे तो कोई फैकल्टी तुम्हें काटेंगे नहीं, नहीं तो सीआर को भी बोल सकते हो पूछने को, राइट? क्लियर? Got it, sir. बट सर एक चीज पूछनी थी, लाइक आप आर्क मेथड को मतलब क्यों नहीं ये करना चाहते, मतलब अगर टीचर, अभी टीचर ने हमें दोनों सिखाया है, बट व्हाई वुड यू प्रेफर पॉइंट मेथड रादर देन दिस वन? Because arc method is mentioned, then only we should use that. जो भी पहले मैंने जो बुक से मैंने जब पढ़ाई की, और जो पहले आर्क मेथड होता ही नहीं था, तो आई एम ऑफ दैट एरा की वो नॉर्मल पॉइंट मेथड ही ज्यादा यूज होता था, राइट? अब आर्क मेथड भी बुक्स में आने लग गए, बहुत बुक्स में, राइट? तो अगर तुम लोग ये, और मैं भी ना कॉमर्स स्टूडेंट, तो ये जो बुक है 12th स्टैंडर्ड की ना, इसमें आर्क मेथड है ही, जो भी फॉर्मूला है अगर देखोगे तो दैट इज द नॉर्मल मेथड। ओके, गॉट इट। मुझे इसलिए आई प्रेफर दिस बिकॉज आई एम यूज टू दिस मोर। ये आर्क मेथड तो मैं आईबीएस को पढ़ाने लगा तब मुझे पता चला कि ऐसे आर्क मेथड भी होता है, राइट? इसमें गॉट इट सर, थैंक यू। like that. But you can apply any. But आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरे मेथड से भी वो पॉजिटिव ही आने वाले। तो पॉजिटिव है, खाली इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, मेथड कोई भी करो, और अगर तुम्हें फिर भी डाउट आता है एग्जाम के वक्त, तो यू कैन सॉल्व विद एनी मेथड, और बहुत ज्यादा टाइम है तो दोनों मेथड से सॉल्व कर दो। लेकिन एक मेथड से सॉल्व करने के बाद नोट लिख देने का कि ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी सॉल्व बाय दिस मेथड आल्सो। कोई भी एक मेथड से सॉल्व करते हो तो एक नोट नीचे लिख देने का कि ऑल्टरनेटिवली वी कैन सॉल्व दिस बाय दिस मेथड आल्सो। गॉट इट तो सर। वो लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फैकल्टी से कंफर्म कर लोगे तो दैट इज बेस्ट। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इफ क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव then those are substitute goods, and cross elasticity is negative, then those are complementary goods, and if cross elasticity is zero, they are not related goods. ये याद ही होना चाहिए, ये कहीं भी आएगा ही। This is important. Clear? यस सर। So can you show us the two formulas which you were saying? One is your formula and one is other states. Can I just show? Yes, there is that we have discussed already in detail in the previous lecture, na? Right? So that you will find in this file number 03 also, all the formulas, right, of elasticity. So we are doing demand. Which sum is it called, sir? These sums? These are demand, supply, and elasticity sums. We have Okay. already discussed demand and supply sum. This is elasticity sums. This we have started this file, right? Okay. 3 sums we have discussed in the previous, 4 we have discussed today. Now I will come to the 5th one. To determine whether a good is considered normal or inferior, one would consider the good's income elasticity. Using the above table, calculate income elasticity of good X and good Y and comment on the nature of the two goods. See, here there are two goods. Quantity of good X purchased and quantity of Y.
So in elasticity, quantity will always be given. Quantity will always be given. ये क्वांटिटी है 2 और 5. अब इनकम इलास्टिसिटी बोला है इसलिए इनकम दिया है. और फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है कि जो न्यूमरेटर है वो तो क्या होगा, मैंने जैसे बोला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, और इनकम है तो डिनोमिनेटर विल बी परसेंटेज चेंज इन इनकम, राइट. तो जो भी नॉर्मल फॉर्मूला है वो ये टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है. जो ये हमारा फॉर्मूला है इनकम इलास्टिसिटी के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द फॉर्मूला. दिस इज द नॉर्मल फॉर्मूला. यू कैन open this file number 03 and you can check page number 27. This is the normal formula of income elasticity. Right? Percentage change, numerator will always be same in all the elasticity. Income पूछा है तो नीचे income आएगा. Cross पूछा है तो price of other product. Price पूछा है तो percentage change in price. And promotional पूछा है तो percentage change in advertisement expenditure. The denominator gets changed. This right part gets right. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वांटिटी दे दिया है. 2 प्रोडक्ट है, हमें दोनों का इलास्टिसिटी निकालना है. एक्स का भी निकालना है और वाई का भी निकालना है इलास्टिसिटी. तो पहले इनकम और एक्स का क्वांटिटी लेंगे और वाई का भी लेंगे और फिर कैसे निकालना है. आई विल एक्सप्लेन. So see, this is the given. Income is given. I have taken the first income as I1, second income as I2. Quantity of X is given. I have taken Q1 and Q2. Then quantity of Y, first quantity of Y20 and Q2 10. तो ये तो given है, right? इतना तो सबको समझ रहा है. Then कभी भी elasticity ढूंढने के लिए always find the change. Change means new income minus old income, new figure minus old figure, 40,000 minus 30,000. If it is negative, you will write negative. If it is positive, you will write positive. So 40,000 minus 30,000, 10,000. 5 minus 2, 3. 10 minus 20, that is minus 10. तो यहाँ तक तो क्लियर है ना. गिवन है और हमने चेंज ढूंढा. गिवन है और चेंज ढूंढा. इतना तो क्लियर है, राइट. एवरीवन क्लियर ना. जिनका प्रीवियस लेक्चर मिस हुआ उनको भी इतना तो समझा कि क्या करना है, राइट. Yes. अब ये इनकम इलास्टिसिटी है, ये आर्क मेथड है. तो आर्क मेथड के लिए या कोई भी इलास्टिसिटी के लिए विद आर्क मेथड दिस इज कॉमन. चाहे तुम्हें प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है, क्रॉस निकालना है, इनकम निकालना है, ये वाला पार्ट सेम रहेगा. डिवाइड बाय ईयर क्या आएगा, ये चेंज इन क्यू. अगर हम पहले एक्स का निकाल रहे हैं तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन ये 2 क्वांटिटी का एवरेज जब लेते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, मींस वी आर टेकिंग द एवरेज ऑफ दिस क्यू. So that method is known as arc method. And the normal point method means only you will take Q1, change in Q upon Q1. सिर्फ इतना लेना है, वो एक मेथड हो गया फॉर्मूला. तो तुम लोग अभी भी लिख सकते हो जिसका मिस हुआ कि दूसरा फॉर्मूला क्या है, सिर्फ चेंज इन Q अपॉन Q1. और आर्क वाला क्या है, चेंज इन Q अपॉन Q1 प्लस Q2 अपॉन 2. और यहाँ पे क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी है तो इधर भी चेंज इन इनकम पहले, न्यूमरेटर में तो वही है, और आर्क में दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2. और अगर आर्क नहीं होगा तो इधर क्या आएगा, सिर्फ I1 आएगा, सिर्फ I1 आएगा. समझा क्या अभी मेथड, फॉर्मूला समझा? क्लियर है फॉर्मूला अभी सबको? So can you just show? Yes. So you can note it down, you have missed it. So this is arc wala formula of income elasticity. Here don't write this and don't write this. ये नहीं लिखोगे तो जो बचा, जो मैंने सिलेक्ट किया है वो नहीं लिखोगे, तो जो बचा that is the normal formula. So if we write this also what you have given, is it okay?
दोनों फॉर्मूला याद रखना है, फैकल्टीज को पूछना है. You have But to sir, if in the end the formula, the answer is coming right, then why will they have an issue? There are two methods and answer will be different with both the methods. Acha. Answer Okay. will differ. Okay. So which formula is to be applied, that you have to ask with your class faculty, right? Okay. Whether you have to use arc method or normal method, if nothing has been mentioned in the question, so I have already informed that you ask your faculty. Okay, sir. But write down both the formulas, right? Okay, once, what is the second formula? You just have to remove Q2 and You don't have I2. to write this. इतना नहीं Okay. लिखना है जो मैंने सिलेक्ट किया, जो बचेगा वो सेकंड फॉर्मूला हो गया. Acha. Okay. Clear? Yes, sir. 1 second, sir. First, then I have substituted the values. जो भी ऊपर values है वही substitute करना है. You all can try the calculation. तो हमारा आ रहा है पॉजिटिव. पॉजिटिव आता है अगर इनकम इलास्टिसिटी तो वो नॉर्मल गुड्स होता है. नेगेटिव आता है तो वो इंफीरियर गुड्स होता है. और अगर जीरो आता है इनकम इलास्टिसिटी तो वो नेसेसरी गुड्स होता है. ये वो फाइल नंबर 03 में मैंने आज भी बताया, पहले भी बहुत बार रिपीट किया है, वो याद ही रखना है. Income elasticity, normal goods, negative income elasticity is your inferior goods, and zero income elasticity means necessary goods. ऐसे हमने x का निकाला, ये आ गया इनकम इलास्टिसिटी फॉर x. E मीन्स इलास्टिसिटी एंड y हम इनकम के लिए यूज करते हैं. EP मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, EC मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी. Sir, can you just go one? That's it. That's it. Similarly, you have to substitute the values for y. Can you go little up? Little up. Yeah? Can you go little bit up? I want to see the sum. Yes, One yes. sum. Yeah. हाँ. But Plus. देखो, those who want to write, when I am explaining, keep writing also, right? Simultaneously. I go very slowly. Sir, can you wait for like just 2 minutes? I'll just write down. Yes, yes. अभी तक क्या कर रहे थे? फटाफट लिख लेने का. ये पेज तो कब से ओपन है, कितने टाइम से? हाँ sir, but I was. Yes. Write it down. किसी बाकी को किसी को डाउट है, समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? क्लियर Yes, है? Yes, sir. सर इन प्रॉब्लम्स पे ग्राफ बनाना भी है क्या? इलास्टिसिटी में ग्राफ नहीं है, डिमांड सप्लाई का है. Price हमारे floor, पीपीटीज price में ceiling का एक्चुअली कुछ ग्राफ्स डेमोन्स्ट्रेशन है, इसलिए मैं पूछ रहा था. ये डिमांड सप्लाई का है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई का है, इक्विलिब्रियम का है, प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग का भी है, और शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई का भी है. ओके, सो इलास्टिसिटी में नहीं है. नो, इलास्टिसिटी में तो कुछ पूछा नहीं है अभी तक. तो सर इम्पोर्टेंट नहीं है ना कि बार बार ग्राफ बना के दिखाए? पूछा है तो बनाना पड़ेगा ना, वो तो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किए हैं सब डायग्राम. Yes. So you will go through that on all the lectures have been uploaded. कल का भी मैंने अपलोड कर दिया है. टोटल 15 लेक्चर्स है. आज का गिन के 16 लेक्चर हो जाएंगे, चारों सब्जेक्ट के 4-4 लेक्चर, और अलग अलग प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है. तो तुम लोग जब YouTube चैनल पे जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट होता है, उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें जो सब्जेक्ट देखना है वो सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो वो 4 लेक्चर ही तुम्हें दिखेंगे. And whichever you want to watch, you can watch, and you can forward and watch, because I go very slow in the live lecture.
यूट्यूब पे 1.5 घंटा है तो तुम्हारा वहाँ 1.5 घंटा नहीं जाएगा, तुम वो पूरा 45 मिनट्स में ही सीख सकते हो, ओके सर। राइट? एंड ऐसे ऐसे एग्जाम आएगा पास में, आई विल हैव टू गो लिटिल फास्ट बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर न्यू, आई एम गोइंग स्लो। और इसीलिए जिसका मिस हुआ है, पहले के लेक्चर्स वॉच करके थोड़ा समझ के आओगे तो बेटर है, तुम लोगों को ही फायदा होगा। डायरेक्ट यू विल अटेंड, अब कल का लेक्चर कोई भी अटेंड कर सकता है क्योंकि दैट इज न्यू टॉपिक डेप्रिसिएशन। तो डायरेक्ट पहले का मिस भी हो गया अकाउंट्स तो नो प्रॉब्लम, कुछ रिलेटेड नहीं है। तो जिस कल का लेक्चर लेकिन जो मिस करेगा और परसों आएगा तो फिर उसको नहीं समझेगा। So yesterday was probably paper. क्या Upcoming Yesterday. lecture, upcoming नहीं, lecture. द अपकमिंग जो कल होने वाला है, आई विल बी अच्छा, टेकिंग डेप्रिसिएशन लेक्चर एंड दैट इज न्यू टॉपिक, तो एनीवन कैन ज्वाइन। जिसने आज तक एक भी लेक्चर कोई भी सब्जेक्ट का नहीं देखा है वो भी आ जाएगा, तो वो अलग ही टॉपिक है, कुछ रिलेशन है ही नहीं, ठीक है? तो दिस इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव आ रहा है वाई का, तो नेगेटिव आ रहा है तो वो इंफीरियर गुड है, पॉजिटिव आ रहा है तो वो नॉर्मल गुड है। ये लग्जरी मत लिखना, ये तो मैंने ऐसे बॉक्स में लिखा है फॉर एक्सप्लेनेशन, बट ऑलरेडी दिस इज मेंशन्ड हियर, दिस इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर व्हिच आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। ये सारे लेक्चर तुम लोग देख लोगे ना, कुछ नहीं है, 4 लेक्चर इकोनॉमिक्स, मतलब संडे को 4 घंटा मैक्स लगेगा तुम्हें, मैक्स 4 घंटे में अभी तक का पूरा पोर्शन तुम कवर कर सकते हो। एक दिन तुम्हें 4 घंटा निकालोगे तो एक सब्जेक्ट कवर कर सकते हो इजीली। जो भी अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, जिसने भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, रियली यू वांट टू लर्न, तो यू विल हैव टू वॉच दोस लेक्चर्स। कोई भी मेरा रैंडम लेक्चर सिर्फ ज्वाइन करके नहीं आ जाएगा तुम लोगों को। ईच एंड एवरी लेक्चर इज इम्पोर्टेंट। आई एम Sir. important topics. Yes. Sir, after like the previous sum which you were doing right now, sir. Yes. Can you go there? Yes. Yes. Which sum? The sum which I was just 30,000 is the income, first income, and 40,000 was the second income. Yes. So, sir, after 3 upon 3.5 divided by 10,000 upon 35,000, what does the answer come? Like, after dividing, it does not come as 3. ये पूरा करना है ना, क्या डिवाइड कर रहे हो तुम? You will solve तो इतना ही आएगा। How 3? Because In the scientific ये तो नॉर्मल है ना, या तुम नॉर्मल कैलसी में भी करो, 3 डिवाइड बाय 3.5 पहले कितना आ रहा है, 10,000 डिवाइड बाय 35 कितना आ रहा है, नॉर्मल यू विल कैलकुलेट, तो दिस इज So it नॉर्मल। is, sir, by 3 divided by 3.5, it is coming at 0.8571. हाँ, देन ये भी तो है आगे, ये हाँ, भी डिवाइड तो कर हाँ, तो if you go to see, Sir, it's coming 2.9. That's 3. That's rounded up to 3. 0.99 की 2.9, Yes. divided by 2.9999. 999 that is 3 only ना। That's what And- I'm saying. That's rounded up to 3. बट मैंने क्या किया है, तुम लोग एक एक करोगे तो वो 999 आ रहा है, बट ये मैंने साइंटिफिक में बताया, ये पूरा इक्वेशन तुम लोग साइंटिफिक में एक साथ डालोगे तो डायरेक्टली यू विल गेट 3 ओनली। यस सर, बराबर 3 आ रहा है। साइंटिफिक सब लोग ले लो, हाँ और सर, ये बराबर 3 आ रहा है सर। साइंटिफिक Yes, sir, it's coming. कब से बोल रहा हूँ ना, साइंटिफिक ले लो। व्हाई यू आर कैलकुलेटिंग इन नॉर्मल कैलसी, इको, बीए, एफएम सब में लगेगा ही। जिसने अभी तक बाय नहीं किया है, तुम लोगों को लॉस होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ले लो, 1000 रुपए का आएगा, ले लो। इतना फीस दे रहे हो, साइंटिफिक से कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सब नहीं है, ले लो। जितना जल्दी स्टेशनरी शॉप में मिलता है, स्टेशनरी शॉप में जाने का टाइम नहीं है, अमेजोन से ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन भी और भी साइट्स पे मिल रहा है, घर पे आ जाएगा 1 डे, है ना। क्लियर? तो बाय द साइंटिफिक, और okay, साइंटिफिक sir. भी बता दूंगा। Got, yes, sir, I Don't got have the to- answer. मतलब ये सब तुम्हें इसमें टाइम ही वेस्ट नहीं होएगा कि कैसे आया क्या नहीं, ये पूरा यू कैन टाइप डायरेक्टली, यू विल गेट दिस, है ना। सर Yes, sir, I got 3. क्या
आपको ये -10 डिवाइड बाय 15 कहाँ से आया? 15 कहाँ से आया मेन? -10 तो हमें इनकम का चेंज दिख रहा है, बट हाउ दिस 15 केम? -10/15 ना, ये हाँ। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, 20 + ओके 10 डिवाइड बाय 2 ना, दिस इज ओके, द फॉर्मूला। तो वो 30 तो अपॉन, ठीक है। राइट, मैंने वो डायरेक्टली लिख दिया है, वो पेज खत्म होने वाला था या जल्दी होगा जब बनाया। ये भी ओके 2020 का बनाया हुआ है, राइट। सॉल्यूशन डेट होगी तो देखो नीचे यस, यू गॉट इट। है, ओके, यस। तो दिस वाज द फिफ्थ सम। अभी देखो सिक्स सम, जिसको भी लिखना है साथ में लिखना। अब ये दिस इज सिक्स सम। Suppose that 50 chocolate bars are demanded at a particular price. कि एक प्राइस पे ना 50 चॉकलेट बार है, वो प्राइस नहीं दिया। If the price of chocolate bar rises by 4%, प्राइस 4% से बढ़ जाएगा तो डिमांड विल फॉल टू 46। क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट दिया है कि इनिशियल क्वांटिटी वाज 50 and if price increases by 4%, then the demand will fall to 46. Calculate elasticity and was the decision to increase price correct? अब सिर्फ इलास्टिसिटी बोला है तो यहाँ पे हम प्राइस इलास्टिसिटी निकालेंगे। सी व्हाट इज द फॉर्मूला, द ओरिजिनल फॉर्मूला। इसमें ये बुक गो थ्रू करो तुम लोग इलास्टिसिटी समझने के लिए, यू हैव टू गो थ्रू दिस। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला? ये द ओरिजिनल फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंबॉलिकली उसको ऐसे लिखेंगे, फिर उसको ऐसे लिखेंगे, फिर उसको डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे बन जाएगा, राइट। ये सबका मीनिंग क्या है वो भी यहाँ पे दिया है। तो ये बेसिक फॉर्मूला पहले पता होना। तो वी वांट टू फाइंड दिस, तो वी नीड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हियर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ऑलरेडी गिवन, it rises by 4%। तो देखो दिया क्या है यहाँ पे, अगर देखोगे तो Q1 दिया है 50, initial the quantity demanded of chocolate was 50, later the quantity demanded of chocolate was 46 and percentage change in price is given 4। ये गिवन है, खाली ये तीन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, ये तो क्लियर है। अब बिकॉज यहाँ पे P1 P2 नहीं दिया, P1 P2 दिया होता तो हम जो नॉर्मल यूज करते हैं ना वो फॉर्मूला इलास्टिसिटी का यूज करते हैं, इधर आर्क और द पॉइंट मेथड, नॉर्मल मेथड। बट हियर परसेंटेज चेंज दे दिया। अब परसेंटेज चेंज ना, ये बेसिक मैथ्स पहले सबको एक तो पता होना चाहिए, नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, इवन इन FM और एनीथिंग। कि अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हें पहले 10 मार्क्स आए थे, बस सुनो एक इंपॉर्टेंट थिंग, पहले 10 मार्क्स आए थे, अभी तुम्हें 12 मार्क्स मिला, तो हाउ मच परसेंटेज डिड योर मार्क्स इंक्रीज, बाय हाउ मच परसेंटेज। तो हम कैसे निकालते हैं कि न्यू माइनस ओल्ड, न्यू मार्क्स इज 12 माइनस ओल्ड दैट इज 10 अपॉन ओल्ड इनटू 100। कभी भी तुम्हें कोई भी दो फिगर, चाहे वो मार्क्स है, प्राइस है, क्वांटिटी है, इनकम है, कोई भी दो फिगर है, एक प्रीवियस फिगर एक न्यू फिगर, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, तो ये फॉर्मूला जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो। जिसको नहीं पता है, जिसको पता है तो अच्छा है, बहुत सब्जेक्ट्स में काम आएगा। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड into 100। क्लियर है ये सबको? जो मैंने बोला वो सबको समझा? क्या बोला मैंने? क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी टू फाइंड दिस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है तो फॉर्मूला वही है, न्यू माइनस ओल्ड। 46 इज योर न्यू, 50 is old, so divide by old, that is Q1 into 100।
तो 46 minus 50 upon 50 into 100, so -8%, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, -4 upon 50 into 100, -400 upon 50, -8%. But price elasticity में, as I have informed in the previous lecture also, you can ignore the negative sign. प्राइस में नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव मत लो, हमेशा पॉजिटिव ही लो, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव. लिखा नेगेटिव तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा. प्राइस इलास्टिसिटी में नेगेटिव पॉजिटिव से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. इनकम, क्रॉस और प्रमोशनल में जो साइन आएगा वही साइन लिखना है. So either you can write -8% or you can write 8%, that is one and the same. So now we can find the price elasticity with the help of the original formula. Percentage change in quantity upon percentage change in price. Percentage change in quantity is 8 and the percentage change in price was given 4. So therefore price elasticity is 2. And if it is greater than 1, so we say it is an elastic demand. If it is less than 1, so we will say it is inelastic demand. And if it is 1, we say it as unitary demand. ये भी मैंने ऑलरेडी बताया. अब जो तुम लोगों को लिखना है वो ये वाला पार्ट सब लोग लिख लोगे. ये जो 2 लाइन है ये सब लोग लिख लोगे. इससे रिलेटेड भी कुछ कमेंट आ सकता है एग्जाम में, और ये नॉलेज होना भी चाहिए. यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is greater than 1, then if price increases, then total revenue decreases. TR मतलब total revenue, P मतलब price, up arrow मतलब increase and down arrow means decrease. And if price decreases, total revenue increases. ये कब? अगर price elasticity greater than 1 है. Greater than 1 है. और अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो उल्टा हो जाएगा. प्राइस इंक्रीजेस, टोटल रेवेन्यू आल्सो इंक्रीजेस. प्राइस डिक्रीजेस, टोटल रेवेन्यू विल आल्सो डिक्रीज. सो दैट आल्सो यू कैन राइट. मैंने खाली ये सम का लिखा है इसमें, तो ये सब लोग नोट कर लो. सर अगर लेस देन 1 रहेगा तो प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू दोनों बढ़ेगा या दोनों घटेगा? दोनों बढ़ेगा या दोनों कम होगा. प्राइस बढ़ा तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्राइस कम हुआ तो टोटल रेवेन्यू भी कम होगा, राइट? So if the price is less than 1, then price increases and TR decreases. No, this is not less than, this is greater than sign. ये greater than sign है. Less than means इसका उल्टा, तो ये टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज करना है अगर लेस देन 1 है तो. If less than 1, P increases, TR also increases. So here it is, if price is greater than 1, price increases and TR decreases. Yes. If it is greater than 1. Less than 1 के लिए उल्टा होगा. टोटल रेवेन्यू का साइन चेंज कर देगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करना. ये लेस देन है तो चेंज द साइन, ये ऊपर नीचे साइन कर दो. और इक्वल टू 1 है वो भी लिख लो कि इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, तो प्राइस इंक्रीजेस, टोटल रेवेन्यू नो चेंज, टोटल रेवेन्यू विल बी सेम. प्राइस डिक्रीजेस, देन आल्सो टोटल रेवेन्यू विल बी सेम. अगर ये EP 1 आएगा, 1 एग्जैक्ट 1, तो प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, टोटल रेवेन्यू सेम होगा. No change in TR if price elasticity is 1. और यहाँ पे यही पूछा भी था. So can you repeat? No change in TR? Yes.
प्राइस if EP is 1, no change in TR. इतना ही तो बोला, 3 बार रिपीट करता हूँ, then also you ask to repeat. Sir, I didn't hear you right now. फटाफट सुनो, और आई एम गोइंग वेरी स्लो, इतना स्लो भी कैसे नहीं लिख पाते हो तुम लोग? If EP is equal to 1, TR में नो चेंज, खत्म, बस ये सब साइन सेम रहेगा। TR में नो चेंज, दोनों नो चेंज लिखना है, खत्म। और यहाँ क्या बोला है, कैलकुलेट इलास्टिसिटी जो हमने किया, बट यहाँ पे अगर ऐसा कमेंट पूछेंगे तुम्हें कि द डिसीजन टू इंक्रीज द प्राइस वाज करेक्ट और नॉट, तो हाउ टू कमेंट दिस क्वेश्चन? आई एम कमिंग टू इट कि इसको कमेंट कैसे करोगे तुम लोग? द डिसीजन टू इंक्रीज प्राइस will depend on your total revenue. What is the aim as a seller? मेरा एम क्या है कि मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। अगर मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, राइट, या सेम भी है, तो माय डिसीजन इज करेक्ट। बट इफ माय टोटल रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग, देन माय डिसीजन इज नॉट करेक्ट। अगर कभी भी ये पूछेंगे कि प्राइस इंक्रीज या प्राइस डिक्रीज करने का डिसीजन करेक्ट था या नहीं था, इलास्टिसिटी फाइंड करके फिर कमेंट करो, तो ये नॉलेज तुम्हें है। अब यहाँ पे हमारा आया प्राइस इलास्टिसिटी 2 आया, यानी ग्रेटर देन 1 आया, और हमने क्या किया है, प्राइस को बढ़ाया है। प्राइस को बढ़ाया है तो हमारा टोटल रेवेन्यू कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो अगर टोटल रेवेन्यू कम होता है तो अवर डिसीजन इज नॉट करेक्ट। Therefore, the decision to increase price was not correct because total revenue is decreasing. Total revenue increase होगा तो our decision is correct. Total revenue के basis पे comment करना है, समझा? How you have to comment? Clear है ये? Clear है? Yes, sir. See, this is your 7th question. Knowing that the demand for wheat is inelastic, if all farmers voluntarily plot 10% less of their wheat crop, then their total revenue would. अब ये तुम लोग बताओगे, ये तो बहुत लॉजिकल, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस पे ही बेस्ड है। यहाँ लिखा है कि डिमांड इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब क्या होता है? लेस देन 1। वो मैंने मीनिंग बता दिया कि अगर इलास्टिक है और इन लोग ने क्या किया, 10% कम ग्रो किया, डिमांड इनइलास्टिक है, 10% ग्रो किया कम, तो इनका टोटल रेवेन्यू क्या होगा? क्या होगा टोटल रेवेन्यू? सर सेम ही रहेगा ना? सेम नहीं रहेगा, सेम तो इक्वल टू 1 है तो होता है ना, मैंने बोला। बट इनइलास्टिक मींस लेस देन 1। या फिर सेम रहे, मतलब दोनों भी इंक्रीज हो गए या फिर देखो यहाँ पे क्या दिया है कि क्वांटिटी कम किया, क्वांटिटी कम हुआ तो प्राइस टोटल रेवेन्यू भी कम होगा क्या होगा? प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज हो जाएगा ना? यस, क्वांटिटी कम हुआ तो प्राइस विल इंक्रीज बिकॉज द डिमांड इज इनइलास्टिक। एंड उन लोग ने कम ग्रो किया, कम प्लाउ किया, यानी कि जो व्हीट है वो कम ग्रो होगा। कम ग्रो होगा तो द सप्लाई विल बी लेस, द क्वांटिटी सप्लाइड, बिकॉज इन्होंने प्राइस नहीं दिया। तो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि क्वांटिटी कम होने से, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम होने से प्राइस पे इफेक्ट क्या होता है? प्राइस विल इंक्रीज। तो यहाँ पे प्राइस इज इंक्रीजिंग,
प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। If elasticity is less than 1 and price will increase, then total revenue will also increase. तो वही लिखना है that total revenue would increase. तो वो कॉन्सेप्ट जो बोला इसलिए वो इम्पोर्टेंट है, वो कमेंट्स में कोई भी एक सम के कमेंट में ऐसा आएगा, अलग से कुछ छोटा क्वेश्चन तो आ नहीं सकता है उस पर, ठीक है, या एक 5 मार्क्स का भी आ सकता है ऐसा कुछ एक पार्ट सब पार्ट कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू विद द हेल्प ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। देन आल्सो दैट थ्री स्टेटमेंट जो मैंने बोला वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? क्लियर है? ये तो these are very small questions. Then this, if a 6% increase in income results in a 10% increase in quantity demanded of pizza, then the income elasticity of demand for pizza is, देखो परसेंटेज में ही दे दिया है और इनकम इलास्टिसिटी फाइंड करने बोला है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनकम इलास्टिसिटी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनकम इलास्टिसिटी? ये change in quantity demanded by change in percentage income. change in quantity demanded upon percentage change in income, and both are given in the question. दोनों दे दिया है ना यहाँ पे, तो तुम लोग बताओ कितना होगा इनकम इलास्टिसिटी? 0.6 1.67 something. Yes, 10 divided by 6. Percentage change in quantity demanded is 10 and percentage change in income is 6, and both are positive. Yeah. So 10 upon 6, 1.6666, that is 1.67, and income elasticity is positive. So this is which type of good? Normal good, inferior good, or necessary good? normal good. Normal good. Yes, if income elasticity is positive, this is normal good. Right? सर लग्जरी गुड भी नहीं हो सकता ये? नहीं, देखो नॉर्मल और इंफीरियर और नेसेसरी यही कमेंट करो। नॉर्मल और लग्जरी दोनों का पॉजिटिव ही होता है, नॉर्मल का भी पॉजिटिव होता है, लग्जरी का भी पॉजिटिव होता है, राइट? बट हम लग्जरी कब लिखते हैं? जिसका इनकम इलास्टिसिटी 4-5 बहुत ऊपर आएगा तो, बट वो लग्जरी को माइंड से निकाल ही दो, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल और लग्जरी में ना डिफरेंशिएट करने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है कि इससे ऊपर आया तो हम उसको लग्जरी बोले। वैसे तो पिज्जा देखेंगे तो लग्जरी है, बट आजकल के जमाने में वो नॉर्मल ही हो गया, सभी खाते हैं, है ना, गरीब लोग भी खाते हैं, तो आजकल वो नॉर्मल हो गया है। थोड़ा पहले तक 10 साल पहले तक इट वाज लग्जरी, पिज्जा इतना नहीं खाते होंगे लोग। तो यू कैन नॉट जज between normal and luxury के लिए on the basis of income elasticity we cannot differentiate, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव होगा। तो नॉर्मल तो लिखना ही है, फिर तुम लोग लिख सकते हो ब्रैकेट में कि इट कैन बी ए लग्जरी गुड आल्सो। क्लियर? Yes, sir. Yes sir. Then 9th, suppose the price elasticity of demand for yachts equal 4.04 while the price elasticity of supply is 0.22. यहाँ elasticity of demand और elasticity of supply दोनों दिया है। If Congress reinstate a luxury tax, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई सपोज और उसने लग्जरी टैक्स लगा दिया याच पे, तो who will pay more of the tax? Buyer will pay more और seller will pay more. ये भी बहुत एक important concept है, which I will explain you and which is very easy also, right? देखो अब ये वाला देखो, ये वाला तुम लोग सॉल्यूशन में देखना, इसमें मैंने यहाँ लिखा है लेस देन 1 नॉर्मल गुड्स, पॉजिटिव है तो, और ग्रेटर, बट पॉजिटिव आया ना तो यू विल राइट नॉर्मल ओनली बिकॉज ये 2020 की फाइल है। तब ऐसे
एक जो बुक से मैंने पढ़ाया था उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट भी था, बट जो आईबीएस में अभी सिखा रहे हैं ना वो ग्रेटर देन 1 मीन्स नॉर्मल, बट एक्चुअली और डीप में जाएंगे तो जैसे मैंने बोला, बट यू कैन नॉट जज, तो दोनों भी लिख सकते हो, बट कोई एक लिखना है तो सिर्फ नॉर्मल लिखना, ओनली लग्जरी मत लिखना अगर पॉजिटिव है तो, क्लियर? नेगेटिव है तो इंफीरियर। अब ये हमारा गिवन है 9th क्वेश्चन की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 4.04 एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0.22। सर यस, तो मतलब लग्जरी गुड के बारे में लिखना ही नहीं है, मतलब इन शॉर्ट हाँ मेंशन नहीं करना है ना, मतलब खाली नॉर्मल गुड्स मेंशन कर दो पॉजिटिव है तो। और मेंशन करना है तो ब्रैकेट में तुम्हारे डिवीजन में जब सिखाएंगे तो देखो अगर Okay. मतलब लग्जरी सिखा रहे हैं या नहीं, ओके ओके बिकॉज ठीक दिस है। ये जो सब्जेक्टिव आंसर होते हैं ना, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स में, नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स, हम लोग में सब्जेक्टिव मतलब आंसर कैन डिफर डिपेंडिंग अपॉन विच बुक और विच प्रिंसिपल द फैकल्टी इज रेफरिंग, राइट? ओके तो ये जो पॉजिटिव आता है इनकम इलास्टिसिटी, तो नॉर्मल और लग्जरी ऐसे तो दोनों राइट है, राइट? हाँ एंड देयर जी इज अ वेरी थिन डिफरेंस। उसमें जो डिफरेंशिएट करने के लिए एक बुक में तो ये लिखा था कि लेस देन 1 है तो हम नॉर्मल बोलो और ग्रेटर देन 1 है तो लग्जरी बोलो, बट जब मैंने आईपीएस का भी सिखाया और एक दूसरे बुक में लिखा था कि वो 1.2 है 1.5 है तो भी उसको नॉर्मल लिखा था, तो फिर ये प्रिंसिपल एक बुक में लिखा था दूसरे में कुछ और लिखा था, तो वी कैन नॉट से कि एग्जैक्टली व्हाट प्रिंसिपल इज राइट। तो मैंने इसको देखा तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंस मिलेगा, राइट? बट बोथ आर राइट फॉर पॉजिटिव, क्लियर? ओके ओके तुम लोगों को जो बिग बुक मिली है ना उसमें भी देख लेना, उसमें भी कुछ रहेगा इलास्टिसिटी पे ना क्या लिखा है, तो दैट विल आल्सो हेल्प यू बिकॉज यू हैव टू फॉलो दैट टेक्स्ट बुक। सर हमारे पीपीटी में लग्जरी गुड्स मेंशन्ड है, इसलिए आई आस्क्ड हाँ लग्जरी गुड लग्जरी है ग्रेटर तो देन 1। देखो ये मैंने तो 2020 में तो इसलिए लग्जरी लिखा था, बट लास्ट ईयर उनको नॉर्मल बोला था तो मैं फिर वो सिखाने लग गया, तो बिकॉज एक ये कॉन्सेप्ट भी राइट है, ऐसे तो मैंने सब कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, बट कंफर्म बस तो तुम्हारा पीपीटी भी शेयर करो दिस ईयर का भी, तो वी कैन डिस्कस फ्रॉम दैट आल्सो, तो लग्जरी भी लिख सकते हो या? यस और ये अभी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें ना सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया है। अब कंज्यूमर पे कितना बर्डन आएगा और सप्लायर पे कितना बर्डन है, हमने इंसिडेंस या बर्डन ऑफ टैक्स वो एक सम हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 भी, वो अलग मेथड से था क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी नहीं दिया था, उसमें प्राइस दिया था, डायग्राम बना के हमने इसको सॉल्व किया। व्हेन दिस इलास्टिसिटी वी हैव, so we can also directly find कि how to calculate the burden on consumer and the supplier। ये दो फॉर्मूला है, बर्डन ऑन कंज्यूमर का ये फॉर्मूला है और बर्डन ऑन सप्लायर का ये फॉर्मूला है। डिनोमिनेटर इज सेम इन बोथ द फॉर्मूला। डिनोमिनेटर तो क्या है, ईडी प्लस ईएस, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। खाली अगर तुम्हें कंज्यूमर का बर्डन निकालना है तो न्यूमरेटर में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लोगे और बर्डन ऑन सप्लायर निकालना है तो न्यूमरेटर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोगे। और ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है समझने के लिए और ये भी सबको आना ही चाहिए। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू जब भी वो इंसिडेंस या बर्डन on consumer or supplier पूछते हैं, and if you have the demand elasticity and supply elasticity both, in the question number 3 we have only demand elasticity I guess, हमारे पास supply elasticity नहीं था। नहीं तो ये मेथड ज्यादा इजी है। तो ये तो फॉर्मूला है, जस्ट मैंने बोला वैल्यूज दिए हुए थे वो मैंने सब्स्टिट्यूट किए, नॉर्मल एडिशन डिवीजन है,
तो आंसर तुम्हारा इतना ही आएगा। So, what is this formula from? क्या This is which formula, sir? बाजू में ही लिखा है ना, क्या चीज का फॉर्मूला है वो? बर्डन ऑन कंज्यूमर एंड बर्डन ऑन सप्लायर ऑफ टैक्स। टैक्स अगर गवर्नमेंट लगाती है कोई भी गुड्स पे, तो कंज्यूमर पे कितना बर्डन आएगा, सप्लायर पे कितना बर्डन आएगा। दिस टू आर द फॉर्मूला ऑफ टैक्स। क्लियर? Yes, 1 second, sir. और बाकी लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, आंसर आ रहा है ना 0.05 एंड 0.95। इन दोनों का टोटल हमेशा 1 आएगा, डेट इज 100%। बिकॉज अगर गवर्नमेंट ने 10 रुपया टैक्स लगाया तो कंज्यूमर पे 10 का 5% 50 पैसा है, तो सप्लायर पे 9.5 रुपया जाएगा। टोटल टैक्स बोथ विल शेयर। एनी टैक्स दैट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट will be shared by consumer and supplier both. So the total will always be 100%. तो if government, तो अगर हमें ये परसेंटेज में आंसर आ गया और अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि गवर्नमेंट ने 20 रुपीज टैक्स लगाया, तो 20 रुपीज लगाया तो 20 का 5% कंज्यूमर पे 1 रुपया ही बर्डन आएगा और सप्लायर पे 20 का 95% 19 रुपीज बर्डन आएगा। तो सप्लायर विल पे मोर ऑफ अ टैक्स। सप्लायर विल पे मोर ऑफ द टैक्स। यस यस सर ये क्वेश्चन पे ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज अगर इलास्टिक वैल्यू दिया हुआ है विच इज 4.04 फॉर डिमांड एंड 0.22 फॉर सप्लाई, तो जो लेस इलास्टिक है वो तो टैक्स ज्यादा ही पे करेगा ना। जो लेस इलास्टिक है वो ज्यादा पे करेगा, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, बट सिंपल है कि निकालो ना, इसमें कितना टाइम लगेगा। नहीं, उसमें तो बिकॉज ये फिर भी फॉर्मूला तुम्हारा पीपीटी में नहीं है सर, इसलिए मैं ठीक है, आई डोंट नो, मेरे को एक बार बात कर दो। और सिंपल है कि जो लेस इलास्टिक है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम है तो सप्लायर विल पे मोर, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है तो कंज्यूमर विल पे मोर। बट हाउ मच मोर, अगर वो भी पूछा है, समझो खाली पूछा है हु विल पे मोर, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना है, वी कैन राइट। लेकिन अगर पूछेंगे कि 20 रुपीज टैक्स लगाया तो हाउ मच कंज्यूमर विल पे एंड हाउ मच सप्लायर विल पे, तो वी विल हैव टू फाइंड दिस परसेंटेज ना। यस सर, गॉट इट। लाइक दैट। तो ये फॉर्मूला भी है, ये करेक्ट है, नहीं सिखाया है तो कोई नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी नहीं, ये कभी एग्जाम में इतना आया भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है इस फाइल के। स्टार्टिंग के जो 3 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो So, burden of supplier and burden of consumer, so I'm seeing it for the first time or some like this. It has never come in economics ever. ऐसा तो कुछ नहीं है, वो ग्रेजुएशन तक नहीं है, ग्रेजुएशन तक तो सम्स होते ही नहीं है। इससे sums होते हैं, but I've never seen this burden of consumer and burden of supplier का ये formula भी गलत होता है। होता और है। ये होता है। इंसिडेंट्स, यस, दिस ऑल आर देयर। इंसिडेंट्स हमने थर्ड क्वेश्चन में भी पढ़ा था और वो तो इम्पोर्टेंट है। इंसिडेंट्स मीन सेम बर्डन ओनली, ठीक है, एंड दैट विल कम इन द एग्जाम आल्सो, राइट। तो इसलिए तो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो कुछ तो एडवांस सीखोगे ना नया। पूरा ग्रेजुएशन का ही सीखेंगे तो फिर क्या फायदा, समथिंग न्यू यू विल लर्न। सर मेरा सप्लायर का 94.84% आ रहा है, तो वो चलेगा या फिर 95 होना राउंड ऑफ, मतलब ऐसा जरूरी है? नहीं, ठीक है, अगर वो 0.05 आ रहा है तो राउंड ऑफ करोगे ना 0.9484, तो 948 को राउंड ऑफ करोगे तो 2 डेसिमल तक तो 0.95 होगा, या यू कैन राइट 94.84%, और फिर वो 5.16% आना चाहिए। दोनों का टोटल 100 ही आएगा, दैट इज फाइन।
वो डेसिमल इतना टेंशन मत लो, डेसिमल इज फाइन, यू कैन राउंड इट ऑफ, यू कैन टेक अप टू 4 डिजिट्स, मैंने 2 डिजिट लिया है, 4 डिजिट तक लेके जो आएगा वो भी सॉल्व करके लिखोगे तो दैट इज ऑल्सो फाइन। Sir, यस when you just said कि round off you can take, but it is coming as he said right now. Sumit was saying right now, it is coming at 0.9483. That way, if you take 4 digits also after that. हाँ, So- तो into 100 तो 94.83% it will come। हाँ तो अगर 0.9483 भी करते हो into 100 तो अभी 94.83 आएगा सर। 95 94.83% अगर तुम्हें 10th में मिलेगा, कोई तुम्हें बोलेगा तो तुम 95% ही बोलते हो कि ऐसे 94.83 मिला, ऐसे एग्जैक्ट बताते हो? What is round the off. difference? I don't understand. Sir, because the teacher can cut the marks, sir, because अरे तो मैंने it बोला is ना, तुम लोग it is not 94 कि it is 94.99, then it is understood कि you can say 95. But this is 83, I so already this is said there is, you are asking very silly questions being a postgraduate student. कि I already said कि you can write 94.83 also. I have taken up to 2 digits. अच्छा। I am not I saying didn't you hear don't that. write 94.83. ये डेसिमल वाला क्वेश्चन क्यों पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं ना? अच्छा नहीं सर, I didn't hear you. Because you can write 9475 भी आ रहा है तो उसको 95, टेट में मेरे को परसेंटेज आया अगर 79.8 तो मैंने सबको 80 बोला ना, 79.1 आएगा तो हम 79 यूजुअली। वो चार्ट मार्क्स कोई कट नहीं करता है इतने थोड़े के लिए। अच्छा ओके सीए सर, में भी कट नहीं करते हैं, ये तो ठीक है, एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन है ना? ठीक है सर। तो you should know कि that is fine. Decimal में difference आएगा because of the how many digits we are taking. You can take up to 2 digits or maximum 4 digits, whether in FM, whether in economics or in BA. Clear everyone? Clear? Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी ये क्या है, use the demand and supply curve to analyze what happens in each of the following case. अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके लिए ना अभी एक जो टॉपिक मैंने सिखाया था, अभी एक तुम लोगों को मैं फाइल और ओपन करके बताऊंगा ये वाला, और ये मैं शेयर भी करता हूँ। ये भी किसी ईयर का फाइल है और किसी स्टूडेंट ने है, और इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी है शॉर्ट में। कौन से डिवीजन का आई डोंट नो, मैं नाम भूल गया, बट कोई तो स्टूडेंट ने भेजा है, करंट ईयर ओनली, राइट? तो इसमें ये सब तो मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड होता है, राइट है ना? तो डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या होता है, दिस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, राइट? देन मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट, मूवमेंट यानी सेम कर्व पे होता है, शिफ्ट यानी कर्व शिफ्ट हो जाता है ना? ये सेम कर्व, ये मूवमेंट बोला जाता है। और शिफ्ट यानी अगर इंक्रीज हो रहा है डिमांड तो जो कर्व है वो राइट में शिफ्ट होता है, डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट में। ऑल दिस आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, तो तुम लोग प्रीवियस लेक्चर देखोगे। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, है ना? मुझे जो अभी नया सिखाना है उस पे मैं आ रहा हूँ, जो तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमने डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये क्वेश्चन डिमांड फंक्शन का, दिस एक्सेप्शन गिवन गुड्स, दिस आल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। व्हाट इज सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, तो ये सब इधर छोटे छोटे में है। दिस इज सप्लाई कर्व एंड सप्लाई शेड्यूल, जो मैंने फाइल नंबर 03 में से ये सब ऑलरेडी पढ़ा है। और ये भी सेम कि मूवमेंट ऑन सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, बट ये सिंपल वाला नहीं आएगा। अब तुम लोगों को क्या आएगा ना, उस पे ही मैं आ रहा हूँ। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होता है। इक्विलिब्रियम डायग्राम आल्सो वी डिस्कस्ड दिस डायग्राम, राइट?
It is when demand and supply are crossing with each other. यस यस, तो ये भी ऑलरेडी बताया, और ये भी बताया कि जो प्राइस फ्लोर होता है ना, उस पे सरप्लस होता है ना, और नीचे शॉर्टेज होता है. दिस ऑल ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ये शॉर्टेज और वो सरप्लस, तो सरप्लस और शॉर्टेज का डायग्राम, ऑल दिस आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल. जिसका भी मिस हुआ है ये सब तो इम्पोर्टेंट है. अब ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से. और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 बेस्ड है, 10th बेस्ड है, वो उसके लिए तुम्हें ये नॉलेज होनी चाहिए. दिस फाइल इज 2025-01 which I will share today. अब जो केस स्टडी आएगा इन द मिड सेम, उसके लिए ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है. केस स्टडी शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई, इस पे ही आने वाला है. और केस स्टडी का एक पूरा लेक्चर मिड सेम के पहले इन द जुलाई फर्स्ट और सेकेंड वीक आई विल कीप स्पेशली ऑन द केस स्टडी. वो तो मैं एक अलग से रखूंगा ही, बट अभी खाली थोड़ा ये 10 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आई एम गिविंग यू द नॉलेज. A detailed lecture on this will be again there. देखो क्या स्टेप्स है टू एनालाइज चेंजेस. पहले ये याद रखो कि प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर की वजह से अगर डिमांड या सप्लाई चेंज होगा, not because of price but because of any other factor, if demand or supply changes, then your demand or supply curve will also shift. So you have to identify कि जो फैक्टर केस स्टडी में दिया है या जो अभी क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, उसका इफेक्ट डिमांड पे होगा कि सप्लाई पे. तो ये फर्स्ट स्टेप है. Decide whether the event shifts the supply or demand or both. ये पहला स्टेप है. तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, खाली ए पार्ट. यहाँ पे दिया है the price of coffee has risen because of frost in Brazil has reduced the coffee crop. इसका इफेक्ट डिमांड पे होगा कि सप्लाई पे होगा. फ्रॉस्ट की वजह से ब्राजील में कॉफी का क्रॉप कम हो गया. तो इट विल अफेक्ट और इट विल अफेक्ट सप्लाई और इट विल अफेक्ट बोथ. इट विल अफेक्ट सप्लाई. कम ग्रो हुआ तो सप्लाई कम होगा. तो और सप्लाई इफेक्ट होगा, पहले तो वो आइडेंटिफाई करने. अब सप्लाई कम होगा कि ज्यादा होगा वो भी आइडेंटिफाई करते हैं. कम होगा. अब Supply will be less, sir. क्या बोल रहे हो? Supply will be less, no? Yes, supply will be less. Supply will reduce. तो तुम्हें जो डायग्राम बनाना है वो डिक्रीज इन सप्लाई का बनाना है. अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो इसका तो मेरा सॉल्यूशन कहाँ है, वो फाइल मैंने देखा नहीं है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ. सबसे पहले जब भी ये शिफ्ट वाला डायग्राम तुम लोग बनाते हो, जब भी तुम्हें आएगा केस स्टडी में ना, एक डिटेल्ड लेक्चर विद हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम आई विल डेफिनेटली कीप. बट अभी के लिए बता देता हूँ, Shift in demand, no? नॉर्मल डायग्राम बनाना है. ये नंबर नहीं लिखना है. ये एक्स वाई पे प्राइस और इधर क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई, एंड देन प्रिपेयर वन डीडी ओरिजिनल डिमांड कर्व, वन एसएस ओरिजिनल सप्लाई कर्व, एंड दैट इज हो गया, और ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट. और ये लाइन बना के रख दो. इधर तुम लोग Q1 लिखोगे जहाँ 500 लिखा है, और यहाँ P1 Q1 ईयर ई. सेम डायग्राम, नंबर की जगह खाली यहाँ पे P1 और यहाँ पे Q1. ऐसा डायग्राम, रैंडम डायग्राम, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं, कहीं पे भी सप्लाई का भी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी एक बना दिया, राइट. तो ये पहले हमेशा बने. अब जब तुमने आइडेंटिफाई किया कि सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, तो अगर डिमांड या सप्लाई डिक्रीज होता है तो वो जो कर्व है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा.
तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि ये जो सप्लाई कर्व है, ये जो नया कर्व बनाओगे इसके लेफ्ट में एक पैरेलल लाइन बनाओगे, एसएस के लेफ्ट में एक पैरेलल लाइन, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन यू, जिसको तुम S1 दे दो, एंड दैट विल कट द डिमांड कर्व हियर। कहीं पे भी वो कट करेगा, वहां से लाइन बनाना है इधर प्राइस की तरफ, wherever it will intersect the demand curve. Demand curve will not shift in this A part. उसको तुम E1 लिख दोगे. This was the original equilibrium. This is the new equilibrium. The new price will be this, where you will write P1, and यहाँ से अगर गया तो your new quantity will be this, where you will write Q2. तो Yes. ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम बनाया था, वो तो टैक्स इंसिडेंस का था ना, कि मतलब ऐसा? ये तो क्वेश्चन 1 का है नॉर्मल डायग्राम। हाँ, अच्छा 3 वाला तो इंसिडेंस का था, ये अच्छा, क्वेश्चन ओके। 1 का डायग्राम। तो देखो इसमें भी आपने डिमांड कर्व थोड़ा फ्लैटर बनाया है, तो मैं वही पूछ वो रही थी। फर्क नहीं पड़ेगा, केस अच्छा स्टडी फ्लैटर और उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वही मैं बोल रहा हूँ। केस स्टडी में भी डोंट हैव इलास्टिसिटी ना, ओके ओके उन लोग ओके ने अभी दिया डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, तो यहाँ इलास्टिसिटी नहीं दिया है, तो ओके। कितना फ्लैट या कितना स्टीप वो फर्क नहीं पड़ेगा, और उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस तुम लोग आगे पीछे बना रहे हो, राइट? हाँ, तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स में वो आएगा ना, स्टीपर और फ्लैटर यस, वाला वो कौन? स्टीपर फ्लैटर इंसिडेंस ऑफ टैक्स में तो प्रीवियस लेक्चर में बताया। ओके ओके। So here just I am explaining कि how to draw a diagram. तुम लोग कोई भी एक नॉर्मल डायग्राम बनाओ, इक्विलिब्रियम का ये भी है, ये एक नॉर्मल डायग्राम बना Sir, दो। Yes. sir, so while drawing the diagram, the supply one will be there, which will be crossing the equilibrium. Then the another supply will be coming as the supply will be decreasing. So it goes on the left hand side, and then Yes. there will be another equilibrium, right? So that will Yes. be Wherever Q1, it right? intersects the D. Yes. Wherever it intersects the D, right? And then that will be Q1, right? So Yes, that will be E1, and उससे नीचे जो लाइन लेके even no, जाओगे, I'm talking about the quantity, so the on the हाँ, x-axis, so that will be Q1, हाँ, right? So yes, that will be Q1. हाँ Here अगर हाँ Q1 लिया है तो this new quantity you will write हाँ Q2. Q2, हाँ that अगर I here understand. तुमने Q लिया है तो new quantity को Q1 लिख सकते हो, हाँ right? हाँ that I understand. Similarly, you can write the new price also P2, right? हाँ बस, that I तो ये तुम्हारा हो गया डिक्रीजिंग सप्लाई का डायग्राम, राइट? अगर hmm. तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन And विद द then we हेल्प ऑफ can द even डायग्राम, say, and then we can explain on the diagram that yes, then what you will explain is, yes, the price was the original price as like the it's also P1 has been sorry, P is being increased to P1, and the equilibrium price has also changed from E to E1, and the supply has also changed from S to S1. तो जब भी सप्लाई डिक्रीज होगा तो यहाँ पे वही लिखा है कि यूज द डिमांड एंड सप्लाई कर्व टू एनालाइज। तो यूज द डिमांड एंड सप्लाई कर्व मींस यू विल हैव टू प्रिपेयर दैट डायग्राम जो मैंने समझाया। वो क्लियर हुआ? क्या डायग्राम बनाना है सबको क्लियर हुआ? सेम Yes. डायग्राम ओनली न्यू S1 एंड शोइंग द न्यू P एंड न्यू Q, राइट? एंड व्हाट इज द इफेक्ट? कि सप्लाई विल रिड्यूस, द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, प्राइस विल इंक्रीज एंड क्वांटिटी विल डिक्रीज। वो तो पता ही चलेगा क्योंकि नया क्वांटिटी यहाँ आ रहा है लेफ्ट में तो कम हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है। और सप्लाई कर्व जब ये डायग्राम बना लोगे तो इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है और कहाँ शिफ्ट हो रहा है वो तो तुम्हें पता ही है, वही लिखना है बस। सप्लाई कर्व शिफ्ट The टुवर्ड्स, quantity will also decrease, right? So क्वांटिटी विल डिक्रीज, प्राइस विल इंक्रीज। ये तीन ही कमेंट लिखने हैं, खत्म। यस यस नितिका। Demand will remain constant now in this whole process. Only the shift will be of supply, right? Yes, demand will not change. Okay. Yes. दोनों पे भी साथ में हो सकता है। अभी हम लोग बस ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये वाला है, फॉल इन अ डोमेस्टिक एयरफ्रेट इन इंडिया हैज रेज्ड द प्राइस ऑफ होटल रूम्स इन गोवा। देखो होटल रूम का प्राइस बढ़ गया, लेकिन ओरिजिनल क्या है, एयरफेयर का प्राइस कम हुआ तो लोग ज्यादा गोवा जाने लग गए।
डोमेस्टिक एयरफेयर का प्राइस कम हुआ, ये क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी टाइप है, दो प्रोडक्ट है, एयरलाइंस का प्राइस और होटल रूम का प्राइस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, होटल रूम पे जो इफेक्ट हो रहा है उससे रिलेटेड बताना है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक एयरफेयर करने से ज्यादा लोग गोवा जाने लग गए, तो गोवा में होटल रूम का डिमांड बढ़ गया। तो हियर यू विल शो द इंक्रीज इन डिमांड वाला डायग्राम एंड देयरफॉर द प्राइस ऑफ होटल रूम इंक्रीज्ड, राइट। तो हियर यू विल हैव टू शो द इंक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड यानी सेम डायग्राम, अब तुम क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ होटल रूम एंड हियर क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई ऑफ होटल रूम। डायग्राम ओरिजिनल वही रहेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। There will be another demand line and then another quantity and another price. यस Same as this Above. thing, but supply but will be ये- none there. यस इंक्रीज है तो ये यहाँ रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा और ये भी बढ़ जाएगा, राइट, है ना। सप्लाई विल बी सेम, दिस कर्व विल बी सेम। तो दोनों, तो यू विल राइट कि भाई डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, है ना। और जो भी तुम्हारा आ रहा है प्राइस और क्वांटिटी की, सप्लाई विल इंक्रीज, प्राइस विल इंक्रीज। फिर अभी इसका तो केस स्टडी में ना केस दिया रहेगा, और फिर तुम्हें वो केस में से फैक्टर्स देख के ना तुम्हें 10-15 मार्क्स का वही आने वाला है कि भाई क्या होगा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। एक पूरा एक पेज का केस दिया रहेगा। हम लोग पास्ट पेपर्स के 3 केसेस भी डिस्कस करेंगे और कैसे उसको करना है, और वो सब डायग्रामेटिकली अलग अलग, साइमल्टेनियस शिफ्ट, इंडिविजुअल So शिफ्ट। can you show the diagram once again, sir? What you have drawn? नॉर्मल वाला है, जो केस स्टडी के डायग्राम में पूरा एक लेक्चर रख के बताऊंगा। दिस इज द नॉर्मल, यू कैन प्रिपेयर एनी, ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही चाहिए लाइन। नहीं, sir, I'm talking about the second question का diagram which where the demand is तो यहाँ increasing. से जाएगा, एक राइट में खाली करो, उसका डायग्राम बनाया हुआ नहीं है, वही बोल रहा हूँ। अच्छा. DB के ऊपर एक पैरेलल लाइन बना। So we will just do one thing, so we'll just show the arrow upwards where the demand is increasing. यस, तो राइट या अपवर्ड शिफ्ट कर दे, या राइट याद रखो, ठीक है ना। और लेफ्ट डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट, इंक्रीज हो रहा है तो राइट, विच एवर कर्व, वेदर इट इज सप्लाई और डिमांड, और दोनों चेंज हो रहा है तो दोनों को शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। वो भी केस स्टडी में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। साइमल्टेनियस शिफ्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, इसमें होगा भी तो आई डोंट नो। तो ये जो स्टेप्स थे यहाँ पे, इसलिए ये फाइल मैं शेयर करने ही वाला हूँ। तो इसमें देखो ये एक है ना, ये क्या है तुम्हारा, इंक्रीज इन डिमांड का, वही है जो अभी मैंने बोला ना, ये उसका बी पार्ट का ऐसा डायग्राम बनेगा। सर यस, मतलब आई डोंट नो, बहुत लेम डाउट होगा ये। ये कि डिमांड और सेल का, सप्लाई का क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा एग्जैक्टली कि शिफ्ट कहाँ जा रहा है, कि डिमांड का ही हो रहा है या सप्लाई का हो रहा है? इसके लिए मैं एक डिटेल लेक्चर रखने वाला हूँ। अब वही तो यहाँ पे, वो तो क्या सब ये पढ़ के समझना पड़ेगा स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, मतलब से कोई सेम नहीं आएगा ना स्टेटमेंट, बट हम लोग हाँ। जितनी मैक्सिमम हो सकते हैं डिस्कस करेंगे। वो मैं एक लेक्चर में इसलिए बताऊंगा कि ग्लोबली इकोनॉमिक्स में अगर ये होता है तो क्या होता है, ये होता है तो क्या होता है, ओके सपोर्ट करके वो नॉलेज से व्हाट विल बी एग्जैक्ट केस स्टडी वी डोंट नो। तो बट व्हेन वी डिस्कस इन डिटेल 2 आवर्स का एक लेक्चर ना, तो वो ऐसे क्लियर हो जाएगा। ये तो अभी सिर्फ 4 खाली मैं बता रहा हूँ, तो ये आएंगे तो ये तो तुम्हें याद रखना है। बट अगर कोई नया ही आता है जो हमने डिस्कस ही नहीं किया है, तो फिर तुम्हें अपना दिमाग और नॉलेज लगाना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। वो तुम्हारा जजमेंट राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। केस स्टडी में वही ट्विस्ट है कि सबको ये शिफ्ट का डायग्राम सब आ जाता है, बट वो केस में से फैक्टर देख के उसको आइडेंटिफाई करना कि उससे डिमांड बढ़ेगा या कम होगा या सप्लाई पे इफेक्ट होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं ना जो थोड़े कंफ्यूजिंग भी होते हैं, है ना। हाँ सर सैटरडे को लाइक वी हैव सीईसी इकोनॉमिक्स का, तो सर यहाँ पे वहाँ पे भी ग्राफ दे सकते हैं सेम कंडीशंस में, यही वाले जैसे आपने जो दिए हुए हैं। तो हाँ, जो भी मैंने देखो लिया है वो यूट्यूब पे तो देख ही लो, और डाउट मुझे डीएम और कॉल तो कर ही सकते हो। इंडिविजुअल सीईसी के पहले तो मैं क्लास नहीं रख सकता क्योंकि हर डिवीजन का अलग अलग होगा ना सीईसी। तो
तो अगर मैं हर डिवीजन के लिए सीईसी के पहले दिन वो क्लास रखूंगा तो मिड सेम का सिलेबस ही खत्म नहीं होएगा, जो 28 जुलाई से है तुम लोगों का। तो जो भी सीईसी में है उसका पोर्शन भेज दो। अगर वो कवर नहीं हुआ है, कोई ऐसा टॉपिक है, तो आई विल कीप अ लेक्चर एंड कवर दैट बिफोर योर सीईसी। और कवर हो चुका है तो वो तो सब रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, तो तुम लोग वो सुनो। वो सुनने के बाद जो भी नहीं समझ रहा है वो नोट डाउन करो, देन डीएम मी और कॉल मी एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। है ना? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एंड ये ऐसे जो लाइव में डाउट है ना, तो लेक्चर खत्म होने के बाद तुम लोग मुझे वो लाइव में डाउट्स पूछ सकते हो। मतलब अभी जैसे आज इको का लेक्चर है, इको खत्म भी हो गया, तो 5-10 मिनट्स, और सैटरडे संडे तो लेट होता है, तो दैट टाइम आई कैन गिव हाफ एन आवर 1 आवर ऑल्सो, तो यू कैन आस्क मी एनी सब्जेक्ट डाउट दैट यू हैव हियर इन द लाइव ऑल्सो आफ्टर द लेक्चर। क्लियर? Yes, sir. A fall in electronic chip prices has led to the reduction in the price of laptop. हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चिप का प्राइस कम हो गया, तो लैपटॉप का कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया, No, the supply will increase. सप्लाई विल इंक्रीज। यस, Right. तो अभी तुमको तो राइट आ रहा है, सबको नहीं भी क्लिक होगा। तो कभी भी ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम Sir, होता है। but it is very clear now. Okay, it is falling. So supply will automatically will increase. ओके ओके, And so it is the same diagram which we drew in the first one. That the supply is increasing, the price is also increasing. Okay. यस। And So the supply demand will curve is increase. also, the So demand will demand be will same. also increase, no? नहीं, वो तो बाद में ना, प्राइस ऑफ लैपटॉप कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, बट हमें जब Right. शिफ्ट बताना है तो हमें क्या बताना है, ओरिजिनल क्या है, Supply. ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक चिप का प्राइस कम हुआ तो उसका लैपटॉप पे क्या इफेक्ट हुआ कि सप्लाई बढ़ गया और उसकी वजह से प्राइस कम हुआ। प्राइस का इफेक्ट ऑन डिमांड, दैट इज नॉट शिफ्ट, दैट इज तो चेंज ना, वो तो सेम कर्व पे होता है। तो इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखना है कि प्राइस से क्या हुआ, ओरिजिनल क्या है उससे क्या हुआ। तो एक कॉन्सेप्ट जो तुम लोग याद कर सकते हो कि इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस सप्लाई विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो सप्लाई विल इंक्रीज। सब लोग म्यूट कर दो। हाँ, और ये लास्ट है, एन एक्सेप्शनल कोल्ड विंटर इन नॉर्थ अमेरिका लीड्स टू अ हायर प्राइस ऑफ ऑयल। ऑयल इज एन एनर्जी सोर्स एंड इज यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस। बहुत ज्यादा ठंडी आ गई तो ऑयल का डिमांड बढ़ेगा, उसकी वजह से डिमांड बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ गया ऑयल का। Sure. यस, So, I just want to ask you, like the C part, which is that, so it would the supply curve will be shifting to the right one, right? Because left is supply curve decrease. shift towards right. Yes, Okay. and here the demand curve will shift towards right in the D part, And right? the demand curve is fixed only, na, sir, because it is only the And- DD is not shifting. Only the supply is shifting. और ये वाला है ना, this you have to solve on your own, एक बार प्रैक्टिस करो, नहीं तो ये मैं बाद में बताता हूँ। और ये तो वो केस स्टडी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। डिमांड बिटवीन दिस आई विल डिस्कस, यू कैन प्रैक्टिस। ये भी सिंपल है, इनकम इलास्टिसिटी बोला है, राइट? नेचर ऑफ द गुड्स, इनकम इलास्टिसिटी मील दिया है, फर्नीचर दिया है, बट इसमें इनकम तो दिया ही नहीं है ना, खाली अच्छा इनकम इलास्टिसिटी दे दिया है। They have given you the income elasticity, you have to just comment on the nature of the goods. Multinational, ये सब तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस है which are very easy. ये ट्राई करना, डाउट मैं क्लियर कर दूंगा क्योंकि अभी 2 दिन तो डेप्रिसिएशन है। In the next lecture I will cover 2 or 3 from this which are hard, right? वो मैं कवर करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। और ये तो मैक्सिमम है, इस साल तो उससे भी कम ही दिया है क्वेश्चंस, और ये फाइल भी मैं शेयर करूंगा जिसमें सब कुछ है, वो साइमल्टेनियस शिफ्ट एंड ऑल। और देखो ये वाला एक टेबल इंपॉर्टेंट है विच इज स्लाइड नंबर 56 एंड दिस फाइल इज 2025-01। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर
कब क्या होगा, नो चेंज इन सप्लाई तो क्या होगा अगर ये होता है तो, इंक्रीज इन सप्लाई एंड नो चेंज इन डिमांड और दोनों का होगा तो क्या होगा। तो ये टेबल भी बहुत काम का है जो केस स्टडी में आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल बाय यूजिंग दिस टेबल एंड द अदर केस स्टडी न्यूमेरिकल्स। और ये पूरा समरी है डिमांड सप्लाई एंड उसका कि क्या क्या होता है ये 4 स्लाइड में। तो ये लास्ट के स्लाइड 56 से लास्ट तक इम्पोर्टेंट है और बाकी जो भी मैंने सिखाया वो इम्पोर्टेंट है। और सीसी के लिए जिसको भी कुछ बच गया है सिखाना, कुछ एक्स्ट्रा है, तो दैट यू विल आस्क मी, inform me in DM or in group, है ना। और then I will try to keep a lecture या I will explain you in any one day extra lecture लेके मैं वो CEC के लिए देखता हूँ, मैं explain कर दूंगा। कुछ बच गया तो कवर हो चुका है तो watch the YouTube videos, clear।